Good afternoon, students. Today we are going to start with the last topic of chapter 4, that is cost and revenue concept. Okay, see, the cost has been reduced. मतलब cost को क्या किया है, इस due to the current situation. देखो textbook जो है वो change हुई है, लेकिन keeping in mind the current situation 30% syllabus has been reduced, तो उसमें cost भी reduce किया, but ऐसे नहीं it's not important, it's important, इसीलिए उसको textbook में डाला है. Before starting the revenue, I'll be taking 2 to 3 minutes intro for cost, so that you all can find it easy to correlate with the revenue. Okay, revenue and cost has been correlated, so then only you'll be able to understand easily what is revenue concept. One thing. Second thing, after completing the lecture, I'll be giving you all the notes immediately, क्योंकि even I'm writing on the textbook and sending you all, giving the page number, फिर भी बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इन द लेक्चर विच आई विल बी टेकिंग आफ्टर दिस, उसी में मैंने हैव रिटर्न, आई विल बी राइटिंग द आंसर्स एंड डिक्टेटिंग यू ऑल प्रॉपरली हाउ यू हैव टू राइट, बिकॉज स्टूडेंट्स आर आस्किंग मैम ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है. सी स्टूडेंट्स, जो पोर्शन जो आप सेंड द PDF, जिसमें जो रिड्यूस्ड पोर्शन है, ओके, जो रिड्यूस्ड पोर्शन है उसको आपको पढ़ना नहीं है. अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, but the question in the board exam won't be asked from the reduced portion. Say for example, I am saying now cost जो है उसको reduced किया है, आप आंसर इन डिटेल देखोगे ना, उस आंसर इन डिटेल में कॉस्ट है तो उसको आपको नहीं लिखना है. आई विल बी सेइंग इन द लेक्चर. ओके, सो डोंट टेक दैट. रिड्यूस पोर्शन के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा. आपको नॉलेज के लिए करना है तो कर सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द कॉस्ट. ओके, कॉस्ट इज important, that's why I am taking just giving 2 to 3 minutes intro for that. Even if you all have any doubt, you all can ask. Okay, and one more thing, I have decided that after this lecture, the next lecture we will be starting with the chapter 5. From chapter 5 our syllabus will start. Our syllabus has been started changing, मतलब यहाँ से changes डालना start किया हमारा textbook में. And 5th से 6th totally new chapter है. 7th is different. 8th I think so it's national income, same as how earlier it was. Few changes has been done. So pay attention, number of lectures attend करो. ऐसे नहीं if you are going for classes then no, attend each and every lectures. Okay, try to understand. जितना आप attend करोगे आपका knowledge, आपका understanding उतना बढ़ेगा, and you are having enough time, utilize it. Okay, so let us start with the marginal cost and revenue cost. So let us see. Okay, so now let us start with the new topic, and this is the last topic of the chapter 4, that is concept of cost and revenue. Okay, concept of cost and revenue. The cost has been reduced in this year's syllabus. It is not like that it is not important, it is important because our portion has been changed, and we are learning from a new syllabus, and if they have added the cost, it means it is an important. But considering the time constant and due to the current situation, okay, the cost has been reduced, revenue has been asked. तो अगर एग्ज़ाम में कॉस्ट पूछेंगे ही नहीं, टेक्स्ट बुक के पीछे अगर कॉस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आपको नहीं करना, एग्ज़ाम में नहीं आएगा. रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आपको करने हैं. ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू. कॉस्ट मतलब जहाँ पे खर्चा होता है एक प्रोड्यूसर का, और रेवेन्यू मतलब जहाँ से एक प्रोड्यूसर को पैसा मिलता है. कॉस्ट गुड्स बनाने का खर्चा होता है, रेवेन्यू जब गुड्स सेल करते हैं जो पैसा आता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द कॉस्ट एंड रेवेन्यू. सी, कॉस्ट इज नॉट देयर, बट स्टिल आई एम टेकिंग जस्ट फॉर an intro part so that you all can easily understand the revenue concept also. Okay, so cost, production cost जिसको बोलते हैं. सी, जो प्रोड्यूसर होता है, ओके, वो जब बिजनेस करता है तो वो इनपुट लेता है, बहुत सारे इनपुट लेते हैं. इनपुट मतलब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लेता है, लेबर लेता है. ओके, देन फैक्ट्री लेता है, मशीन्स लेता है, मतलब ये सारे इनपुट्स लगते हैं जब प्रोडक्शन होता है. ओके, तो उस पर जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट. सो कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट. अभी जैसे कि हमने पहले भी आई हैव टोल्ड यू ऑल व्हेन आई वाज टीचिंग माइक्रो एंड मैक्रो, फैक्टर पेमेंट जिसको बोलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो इन सबको हमको रिवॉर्ड देना पड़ता है. जैसे लैंड हो गया तो विल बी गिविंग रेंट, लेबर देन विल बी गिविंग वेजेस, कैपिटल देन विल बी गिविंग इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर देन विल बी गिविंग प्रॉफिट. ओके, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये जो खर्चा होता है, इनपुट जो वो लेता है और वो जो इनपुट को जब पे करता है,
ओके। जो खर्चा इनपुट भरने के लिए होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ भी सकता है, ओके, जैसे कि ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकता है। अगर गुड्स की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, ओके। नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब पूरा खर्चा, ओके, पूरा मिला के जितना प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी खर्चे हुए हैं वो टोटल कॉस्ट में आएगा। अगर प्रोड्यूसर को, क्योंकि जब उसको जानना रहता है कि उसने जो प्रोडक्शन किया है उसमें वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो वो एवरेज कॉस्ट निकालता है। एंड मार्जिनल कॉस्ट मतलब जैसे वो बनाया, उसने 200 यूनिट ही बनाया, ओके, डिमांड उसके प्रोडक्ट के ज़्यादा हो गए तो वो 100 यूनिट और बना रही है। 100 यूनिट बनाने में जो खर्चा जो है, जो कॉस्ट है, उसको बोलते हैं मार्जिनल। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना, तभी वो जान पाएगा कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। एवरेज कॉस्ट हो गया एंड टोटल कॉस्ट हो गया, ओके। नाउ टोटल कॉस्ट 2 तरीके के हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड खर्चा, तो जैसे कि लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, ये एक ही बार खर्चा होगा। 10-15, जैसे एक बार खर्चा किए तो 10-15 साल के लिए आपको ये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये हर साल आपको खर्चा लगेगा, क्योंकि प्रोडक्शन में हर साल, अभी एक ही लेबर को आप 15 साल नहीं चला सकते, एक ही मटेरियल आप 15 साल नहीं यूज़ कर सकते, ओके। तो वेरिएबल मतलब जो फ्रीक्वेंटली खर्चा होता है डेली बेसिस पे, उसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब एक ही बार आपको इनकर करना रहेगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद आप दूसरा कर सकते हो। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ओके। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में लैंड है, मशीनरी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में लेबर, मटेरियल एंड फ्यूल। अभी एवरेज कॉस्ट मतलब उसको एक कमोडिटी, एक यूनिट का खर्चा निकालना रहेगा। तो क्यों निकालेगा? ताकि वो जान सके कि एक उसका खर्चा कितना हुआ। जैसे कि अगर वो निकालेगा कि एक यूनिट बनाने का मुझे 25 रुपये हो रहा है, ओके, और वो एक यूनिट 30 रुपये में बेच रहा है, तो उसको पता चल जाएगा हाँ मैंने 5 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट कमाया, इसलिए वो एवरेज कॉस्ट निकालेगा। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। मिलेगा कैसे? इतना खर्चा हुआ और इतना बनाया, ओके। जब वो डिवाइड करेगा तो उसको पर यूनिट का एवरेज मिलेगा, ओके। देन मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड, ओके। दिस इज आई हैव रिटन फॉर एवरेज कॉस्ट, ओके। नाउ कॉस्ट जो होता है वो गुड्स पे होता है, ओके। जो कॉस्ट इनकर्ड होता है वो गुड्स पे होता है। गुड्स क्या करते हैं हम? मार्केट में सोल्ड करते हैं। जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है वो गुड्स के लिए होता है, गुड्स को प्रोडक्शन प्रोसेस में बनाने के लिए होता है, ओके, और उसको हम मार्केट में सेल करते हैं, सोल्ड इन द मार्केट। तो रेवेन्यू, और जब मार्केट में सोल्ड करते हो आपको रेवेन्यू मिलता है, और इसे मतलब जो आप सेल करते हो और जो आपको पैसा मिलता है उसको हम आइदर बोलते हैं रेवेन्यू और बोलते हैं रिसिप्ट, ओके। रेवेन्यू, रिसिप्ट मतलब एक तरीके का इनकम हो गया, रेवेन्यू मतलब भी एक तरीके का इनकम हो गया। जो सेलर जब गुड्स बना के मार्केट में बेचता है उससे जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं, ओके। इसलिए रेवेन्यू भी बोल सकते हो, रिसिप्ट भी बोल सकते हो, ओके। अभी प्रोड्यूसर और जो मैन्युफैक्चरर है वो सप्लाई करता है ये सारे गुड्स। लेट अस सी द रेवेन्यू कंसेप्ट। जब भी क्वेश्चन में सोल्ड दिया रहा और पूछा, ओके, तो याद रखना है रेवेन्यू लिखना है, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। रेवेन्यू कंसेप्ट, व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू refers to receipt obtained by firm, ओके। रिसिप्ट ओब्टेन मतलब क्या? पर्ची नहीं है, पैसा जो मिलता है ना उसको बोलते हैं रिसिप्ट। इनकम यू ऑल कैन से रिसिप्ट ओब्टेन्ड बाय फर्म फ्रॉम सेल ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज एट गिवन प्राइस इन द मार्केट। मतलब कि रेवेन्यू मतलब कि जो पैसा आपको मिलता है, आप सेल करते हो, क्या सेल करते हो? क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एक प्राइस पे, उसको बोलते हैं रेवेन्यू, ओके। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। नाउ टाइप्स ऑफ रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, सेम एज लाइक हाउ कॉस्ट। पहला है टोटल रेवेन्यू, दूसरा है मार्जिनल एंड तीसरा है एवरेज, ओके। सो टोटल रेवेन्यू मतलब पूरा इनकम, टोटल रेवेन्यू। सो टोटल रेवेन्यू कैसे मिलेगा? टोटल सेल प्रोसीड, जितना सेल हुआ रहेगा, किसका? फर्म का, ऑफ अ फर्म। कैसे? बाय सेलिंग अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस, ओके। तो टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल, किसका? फर्म का,
कैसे? कमोडिटी बेचने से, एट अ गिवन प्राइस. यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस वे. ओके, इट इज़ गिवन इन द सेंटेंस फॉर्म. आई हैव टेकन इट इन दिस फॉर्म सो दैट you all can understand. First line if you're saying, okay, total sale, if you're not mentioning proceeds also ठीक है. total sale कैसे? किसका? फर्म का. कैसे? quantities of a commodity सेल करके. okay, at a given price. so you have to remember like this way. total revenue is equal to total sale proceeds किसका? फर्म का. by selling a commodity at a given price. उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू. मतलब जितना भी उसने बनाया है, 1000 टन, 2000 टन, जब वो मार्केट में बेचता है, ओके, जब वो मार्केट में बेचता है, उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू. सो टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस, जितने भी प्राइस वो लगाया रहेगा. अगर उसने 1 यूनिट का 200 लगाया रहेगा और उसने वैसा 200 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी आप करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू. यहाँ पे एग्जाम्पल इज बिन गिवन. फॉर एग्जाम्पल, इफ फर्म सेल्स 15 यूनिट ऑफ चेयर. ओके, कितना यूनिट उसने बनाया? एग्जाम्पल लिया है. बेसिकली प्रोड्यूसर्स बहुत सारे यूनिट्स या टन्स में प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे हम लोग को छोटा अमाउंट लिया ताकि आपको समझने में ईजी पड़े. तो इफ़ अ सेलर सेल 15 यूनिट, किसका? 15 यूनिट सेल करे चेयर का, और 1 यूनिट का कितना है? 200 पर यूनिट. मतलब उसने 15 चेयर बनाया है. ओके, 15 चेयर बनाया है यूनिट मतलब, और 1 चेयर का कितना प्राइस है? 200 प्राइस है. ओके, अब उसने 15 चेयर बेच दिए, तो 200 प्राइस कितना है? 200, और कितनी क्वांटिटी है? 15 क्वांटिटीज़ है. 15 यूनिट्स मतलब 15 क्वांटिटीज़ है, और कितना प्राइस है? एक का 200 है. तो ऐसे उसने 15 बेचे, तो टोटल उसने कितना सेल किया? 300. मतलब उसका रेवेन्यू 3000, सॉरी, तो उसका रेवेन्यू कितना हुआ? 3000. ओके, understood? I hope you all have understood this. Now let us see average revenue. Average revenue means per unit of output sold. एक, क्योंकि he want to find out how his business is doing, so he'll find an average. Now average मतलब per unit of output sold. okay, एक यूनिट का आउटपुट कितने में, उसको कितने में बेच रहा है वो. सो ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. हमको मिलेगा कैसे? टोटल रेवेन्यू और कितने बेचे, इतना पैसा मिला और इतने यूनिट्स बेचे. ओके, सो AR इज इक्वल टू TR अपॉन TQ. यू हैव टू राइट ऑल दिस इन द एग्जाम्स इफ इट इज आस्क्ड. सो टोटल रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. सो AR इज इक्वल टू TR अपॉन TQ. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टोटल रेवेन्यू ऑफ 15 यूनिट इज 3000. मतलब टोटल रेवेन्यू कितना है? 3000, और टोटल क्वांटिटी, टोटल यूनिट कितना है? 15. तो 3000 डिवाइड बाय 15 करोगे तो आपको एक जो चेयर है, एक यूनिट का आपको दाम पता चल जाएगा 200. ओके, मतलब एक के ऊपर मैंने कितना कमाया? 200 कमाया. ऐसे मैंने कितने बेचे? 15 बेचे. कितने में? 3000 में. वो एक ही अमाउंट निकालता है. ओके, जानने के लिए कि उसने सेल किया, उसमें लॉस तो नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ, ऐसे करके. ओके, now let us see the marginal revenue. Marginal revenue means net addition made to total revenue. ओके, जितना उसने, से फॉर एग्जांपल अगर उसने 15 यूनिट बेचा, लेकिन अगर डिमांड बढ़ गया उसकी कमोडिटी को, तो वो 15 से मे बी ही में सेल 20. ओके, अब वो 20 बेचा तो 15 का तो उसको 3000, लेकिन वो 5 जो एक्स्ट्रा है उसका कितना मिला, वो फाइंड आउट करने के लिए ही डू द मार्जिनल रेवेन्यू. सो नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू. जो टोटल रेवेन्यू उस पर जो एडिशन बाय सेलिंग कैसे? इन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी. रेवेन्यू मतलब हमेशा सेलिंग याद रखना. ओके, सो नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी. एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी व्हेन ही इज सेलिंग. ओके, तो उससे जो रेवेन्यू मिलता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू. एडिशन रेवेन्यू मतलब उसने एक्स्ट्रा बेचा और उससे जो पैसा है उसको बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू. ओके, so marginal revenue n is equal to TRN minus TRN minus 1. okay, now let's to see MRN. मतलब what is MRN? marginal revenue. okay, marginal revenue of nth unit मतलब इतना यूनिट है. TR मतलब total revenue और addition, and TRN minus मतलब total revenue of previous units minus number of units sold. मतलब कि ये
पहले तो ये मार्जिनल यूनिट इतना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू इतना था, ओके, और टीआर एन माइनस एन मतलब इतना था, और इसमें से जो एडिशन मैंने किया, एक्स्ट्रा जो मैंने लिया वो एन माइनस वन करूँगी तो मुझे वो एक्स्ट्रा पता चलेगा, 4 5 जो भी रहेगा, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ प्रीवियस टोटल रेवेन्यू, ओके, इफ़ अ प्रीवियस टोटल रेवेन्यू, इफ़ अ प्रीवियस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 20 टेबल्स, 20 टेबल से कितने थे, 4000 थे, ओके। अब उसने एक और टेबल एक्स्ट्रा बेचा फ्रॉम द सेल ऑफ, मतलब एक डिमांड हो गया मार्केट में 20 था, अब 21 हो गया, लेकिन उसको इस एक टेबल के बारे में जानना है, ओके। सो फ्रॉम द सेल ऑफ 21 टेबल, तो कितना था, 20 टेबल का 4000 था, 21 टेबल का कितना हो गया, 4200। तो ये प्रीवियस है और ये न्यू है, तो 4200 माइनस 4000 इफ विल डू, okay, 4200 minus 4000 will give do, तो he'll get 200 पर टेबल, मतलब एक जो एडिशन टेबल है उस पर उसने कितना कमाया, 200 कमाया, ओके। सो आई होप वी हैव डन with the last concept, last topic of supply. Now in the next lecture I'll be taking the new topic, that is what I'll say, market competition. Now from this topic the changes has been made in the textbook, okay, the exact syllabus change is starting from this topic. Now from this all the new chapters have been introduced except I think so national income. So we have to learn it properly, you have to pay proper attention, attend the lectures if you are attending classes lecture also, but still attend number of lectures, जितना नंबर ऑफ लेक्चर्स आप अटेंड करोगे आपका नॉलेज उतना बढ़ेगा, ओके। कि बिकॉज सी इवन द टीचर्स दे टीच इन अ डिफरेंट साइकोलॉजिकल मैनर, ओके, किसी का कुछ समझ में आ गया, किसी को और अच्छे से समझ में आ गया, okay. So number of lectures, because you are having enough time, I think so, enough time, so you can utilize it in a proper way, okay. So go with the number of lectures, pay proper attention, and if you all have any doubt, so you all can ask me, and I have decided to take one lecture, means 5th chapter I'll be taking in Google Meet. Google Meet इसलिए because number of messages I am receiving, they are not able to understand or we are not able to communicate properly, ओके। सो जिनको भी जो भी डाउट रहेगा रिलेटेड टू एनी टॉपिक फ्रॉम 1st to 4th चैप्टर, सिलेबस को लेके, आंसर्स को लेके, ओके, मार्किंग को लेके, you all can ask and do attend that lecture, okay. 5th lecture I am taking on Google Meet, all the division students A B C, okay. After that don't ask me कि मिस ये नहीं वो नहीं, whatever you all have doubt you all can ask without any hesitation, okay. And now I am giving the answers so that you all can, okay, write, because even I am marking in the textbook, then too few students are not able to understand. So question number 1, okay, complete the following statement, complete the statement, complete the statement का जो फर्स्ट है उसका आंसर है पॉजिटिव, ओके। फर्स्ट जो आंसर है उसका आंसर है पॉजिटिव, मतलब ए है वो, okay. Then second is expansion of supply, expansion of supply, expansion of supply means it is C, okay. Then third का the answer is increase in supply, increase in supply, that is D, okay. Then fourth is contraction, contraction of supply, contraction of supply जो कि है A, okay. Then fifth का it is marginal, it is marginal revenue, okay. Fifth का it is marginal revenue, that is B, okay. Question number 2, complete the correlation, complete the, if I am not giving like this way, you all are not able to understand. Students are messaging कि मिस इसका क्या है, इसका क्या है, इसीलिए अभी लिख के दिया, अभी शायद से समझ में आया नहीं, अभी नहीं समझ में आया तो आई थिंक सो यू ऑल नीड अ स्पेशल क्लासरूम फॉर अस, ओके. सो द फर्स्ट इज प्राइस फॉल्स, ओके. पहले का है प्राइस फॉल्स, दूसरे का है P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वान्टिटी. थर्ड इज TC अपॉन TQ, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल
quantity. Okay, then fourth is downward. The fourth is downward. Then fifth is price constant. इतना छोटे बच्चों को लिख के देना पड़ता है. Okay, students are small only now. Okay, then give economic terms. Question number 3. Give economic term. The first is fixed. The second is average cost. The third is marginal cost. Fourth is average revenue. अभी मुझे नहीं लगता किसी को कुछ डाउट होना चाहिए. ओके, अच्छे से मैंने लिख के भी दे दिया है आप लोग को. डिस्टिंग्विश जो है दैट आई विल बी गिविंग इन द ग्रुप. डिस्टिंग्विश जो है दैट आई विल बी गिविंग इन द ग्रुप. You all can go with reliable also, or you all having notes, go with it. Okay, no problem. अगर जो आपको easy लगे. Okay, क्वेश्चन नंबर 5 में टेबल है. टेबल का फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द अबाउट सप्लाई स्केड्यूल. ओके, तो सप्लाई स्केड्यूल यू हैव टू टेक इन अ 50 रेंज. 200, 250 ऐसे करके हैं. 300, ओके, 350, फिर इसके बाद 400, 450 ऐसा 500 करके. ओके, दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अबाउट स्केड्यूल. तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके, यहाँ पे आपको लेना है 200, 250, 300 लाइक दिस वे. 350, 400, 450 एंड 500 ऐसे. यहाँ पे दिया है 10, 15, 20, 25. आई एम गिविंग बिकॉज स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी दैट मिस ये नहीं समझा, इसलिए आई एम गिविंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. पहले का 10 है ऐसा करके 15 ऐसे करके बढ़ाते जाना है और ऐसे सप्लाई कब अपना आएगा. ओके, उसके बाद दूसरा क्या दिया है, थर्ड दिया है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. तीसरा रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट है, एक्सप्लेन करना रहेगा. तो एक्सप्लेन कैसे करोगे कि व्हेन द प्राइस वाज 10 हमने इतना डिमांड किया, सप्लाई किया इतना था तो इतना किया, इतना था तो इतना किया. तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5 का बी. क्वेश्चन नंबर 5 बी जो है ओके, उसमें टोटल 4 बॉक्सेज हैं. ओके, तो फर्स्ट जो आई एम डायरेक्टली टेकिंग, फर्स्ट जो है उसका इट इज़ 35. देन जो सेकेंड बॉक्स जो खाली है उसका इट इज़ 112. टोटल करना है आपको. बेसिकली हैव टू डू टोटल इट इज़ ए मार्केट. ओके, मार्केट सप्लाई. देन तीसरा का जो ब्लॉक्स थर्ड है उसका 40 है एंड फोर्थ का है उसका 60 है. ओके, देन ड्रॉ मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. मार्केट सप्लाई स्केड्यूल अब आप कैसे बनाओगे बता देती हूँ मैं. तो मेरे स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है. पेन से ये आपका ऐसे हो गया. देन यू हैव टू टेक मार्केट. तो यहाँ पे विल बी टेकिंग प्राइस और मार्केट मतलब यहाँ पे जो आपको मिल रहा है 100. अभी देखो 112 है. ओके, अभी ये 112 है, ये 100 है. तो यहाँ पे कैसे 12 का, तो आप व्हाट यू विल डू, यू विल बी टेकिंग 2 लाइन छोड़ना है. ओके, अभी जैसे यहाँ पे 100 है, उसके बाद आप डायरेक्ट ले लो 110, 120. तो बीच में कहीं ऑल कैन शो. ओके, 112 बीच में दिखा सकते हो. ऐसे 20-20 का लेना. ओके, तो आप दिखा के आप कर सकते हो. बीच में लाइन लिया तो भी समझेगा, क्योंकि अब उतना अगर आप नंबर लिखने जाओगे तो मतलब आपका ऐसे पूरा बनेगा. नॉट रिक्वायर्ड. आप बीच में लोगे, लोग ऐसे अज्यूम कर सकते कि यहाँ पे कहीं तो रहेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इसके लिए स्टूडेंट हैव गिवन मी हेडेक एंड आई गेट stress because if you are not able to understand then it will create an difficulty. Okay, अभी wait. और क्वेश्चन नंबर 6 ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. ओके, यहाँ पे दिया है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू. अभी टोटल कॉस्ट इज़ नॉट देयर, ये है नहीं. ओके, ये रिड्यूस्ड किया है, तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे. तो आपको क्या लिखना है, टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट लिखना है. ओके, टोटल रेवेन्यू ये रहा. टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट पूछा है तो आपको ये टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट लिखना रहेगा. 4 मार्क के लिए पूछेंगे तो भी लिखना है. 1 मार्क इधर जाएगा, 1, 2 ऐसे करके. ओके, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, इसकी कोई इशू नहीं है. आपको ये दिखाना है सबका खाली.
This you all can write of your own also. Understood? I hope you all have understood this time. Then explain the determinants of supply is not there. लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं है. Okay, reduced है तो don't write. Okay. Then state and explain the law of supply with exception. Now state and law of supply with exception वो भी बता देती हूँ. ओके, डोंट फील हेजिटेशन है कि टीचर इतना बोल रही तो हम लोग नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हो. आप लोग के लिए ही हम यहाँ पे हैं. जो भी डाउट है, जो भी कुछ क्वेरीज है, यू कैन आस्क. लॉ ऑफ सप्लाई है ये, दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई. इंट्रोडक्शन लिखना है. स्टेटमेंट ऑफ लॉ. ओके, यू कैन राइट स्टेटमेंट ऑफ लॉ. ये यू हैव टू राइट. अजम्पशन, क्वेश्चन में क्या पूछा है, अजम्पशन पूछा है कि एक्सेप्शन पूछा है. विथ एक्सेप्शन पूछा है. देखो एक्सेप्शन पूछा है तो ये इतना किया. ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं है तो आएगा नहीं. अजम्पशन भी पढ़ के रखना है. ओके, आ सकता है, अजम्पशन भी पढ़ना है आपको. एंड एक्सेप्शन पूछा है ना अभी, सो एक्सेप्ट ये तो आप लिखोगे. सी अजम्पशंस यू वोंट बी राइट. अभी ये क्वेश्चन में इट इज़ नॉट आस्क्ड तो अभी आप नहीं लिखोगे, लेकिन एग्जाम के लिए पढ़ के रखना है. ओके, तो आप फिर ये टेबल बनाओगे. ओके, ये टेबल आप एक्सप्लेन करोगे, ये आप बनाओगे. अब एक्सेप्शंस में देखो, ये जो है इसका एलॉबरेशन बहुत बड़ा है. अगर आप ये पूरा लिखने बैठोगे ना तो आपका आंसर 30-40 मिनट एक्सीड करेगा. उतना देने की ज़रूरत नहीं है. हर आंसर को एक टाइम देना है, उतने टाइम तक ही उस आंसर को लिखना है. अगर एक्सीड करा है छोड़ दो, क्योंकि उसमें आपको 8 से ऊपर 16 नहीं देंगे कि आपने इतना बड़ा लिख दिया. 8 तो 8 ही मिलेगा, लेकिन जो बाकी का छूटेगा 4 मार्क 2 मार्क उसका टेंशन रहता है. राइट. सो एक्सेप्शन में यू हैव टू राइट, ये इंट्रो पार्ट लिखना. ओके, इतना पार्ट लिखना है आपको एक्सेप्शन में. उसके बाद ये बनाओ, ये बनाओ और ये अपने मन से लिखो. ओके, एग्जाम में पढ़ के रखो, पढ़ोगे तभी मन से लिख पाओगे. ओके, देन एग्रीकल्चर गुड्स इज देयर. इवन इफ यू आर राइटिंग एग्रीकल्चर गुड्स, अर्जेंट नीड फॉर कैश, पेरिशेबल गुड्स, रेयर गुड्स, अगर आप लॉ ऑफ लेबर ऑफ सप्लाई अवॉइड करोगे तो भी आपको 3 मार्क का है. 4 लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलेगा. ओके, आई होप सो you all are able to understand. Next lecture I am taking on Google Meet, division A, B, C and arts. Okay, do attend the lecture because जो भी कुछ, because ऐसा we are not able to communicate in front. Okay, आमने सामने से communication नहीं हो रहा, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है. सब बच्चे एक जैसे नहीं, में भी किसी को नहीं समझ रहा होगा तो you all can easily ask me without any hesitation. Do attend the lecture. Okay, so thank you for today's lecture.